पर्वत सामे ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रखनी ठार मेरी। जन्म तुम्हारे लेखे माधु, जन्म तुम्हारे लेखे। तुम तर अपत्यार क्या कीजे, बचनी तोर मोर मन माने जान कुकुरन बीजे। हों बल बल चौर मैया कारने कारण कवन बोल, बहुत जन्म बिचरे थे माधो, कई जन्म पे कीट पतंगा के जन्म कई जन्म पंखी थप होयो, कई जन्म है वर लिख जोयो। जगदीश मिलन की बरिया श्रृंकाल एह दे तजरिया, केते रुख दीर्घ हम चिने केते पशु, केते नाकुली में आए केते पंख आए। बहुत जन्म बिसरे थे माधो, गर्भदात आस लगे जीवो सिर पे दर्शन देखे। परम सत्कार जोग गुरु प्यार दे विच गुरु दरबार दे हाजरी भर रही गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ ख्यालां नूं बाहर जाण तो रोकीए, चित विरतियां एकाग्र करिए। रसना पवित्र करन वास्ते सारे ही उचारण करो जी सतनाम। बहुत ही सत्कारयोग श्रीमान संत बाबा गगनदीप सिंह जी महाराज, आप जियां नूं बहुत ही प्यारे कीर्तन विचार दे नाल सरसार कर रहे सन, निहाल कर रहे सन कि किवें शरधा दी लोड़ है। जो बाकी थोड़ा जिहा रहिंदा समा है, इस दे विच भी आपां ने प्यार दी, शरधा दी भावना दी विचार करनी है।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਵਜੂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਉਹ ਵਜੂਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਿਤੇ ਸੁਰਤ ਮਾਹੇ ਜੋ ਨਿਰਤ ਕਰਤੇ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਹਿਤੇ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਸਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਪਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਾਸੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆਂ, ਮਨ ਕੀ ਕਟਿਐ ਮੈਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬੁੱਠਿਆਂ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਬ ਚਿੱਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੀ ਠਾਰ ਨੀਕੀ ਧਿਆਨ ਕੋ, ਧਿਆਨ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਪੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨਿੰਦੜੀਏ। ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਉਸ ਭਾਗ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਰੇ ਜਰੇ ਤੇ ਕਣ ਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ, ਪੂਰਨਵਾਸੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਮਨਾਓ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਜੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਲੇਖੇ ਜੋ ਯਾਦ ਸਾਈਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਪੈਂਦੀ ਮੁਜ਼ਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਹੁਜਰੇ ਸਾਂਝ ਤੇ ਫਜਰੇ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪਰਮ ਪੂਜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨਾ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਪੂਰਨਵਾਸੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
क्योंकि असी तां पढ़ देंदे हाँ जिस प्यारे स्यों नेहो तिसे अगे मर चलिए धृग जीवन संसार ताके पाछे जीवन। पर जीवन देखो किहो जिहा है परम पूजै सत्कारयोग बीजी दा। राग वैराग तो भी उपर बीत राग अवस्था दे मालक जो बचन कर देण ओ बचन साध वचन अटलादा अटल जान वाला बचन है। सो वडभागी संगत है जिन्हां नूं अज महापुरुषां दी सरीरक गैर हाज़री दे विच सत्कारयोग बीजी दा आशीर्वाद पुता माता की आसीस निमख न विसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश ओ आसीस बख्शिश करदे हन। सो ये प्यार ही प्यार महापुरुषां ने सिखाया है, क्योंकि जदों तक साडे अंदर ये प्यार ते बराग नहीं आउंदा उसों तक इस माया तो छुटकारा भी नहीं हो सकता। बिन बैराग न छूट समाया। जिवें सुन रहे सी शरदा जिन्नी होवे सतगुर दे उत्ते ओहे जिहा ही फल मिलदा है, ओह फल लगदा है। सतगुर तां सतगुर पुरख अगम है निर्वैर निराला। जानो धरती धर्म की सच्ची धर्मशाला। ज्यों कर निर्मल आरसी जग वेखण वाला जिहा बीजै सोलणे फल कर्म संभाला। ज्यों कर निर्मल आरसी जग वेखण वाला जिहा मुँह कर भालिए तेहो वेखाला। शरदा नूं फल लगदा है। सतगुर तां आरसी शीशे वांगू हन। जिहो जी कोई भावना लैके आउंदा है उस दी भावना नूं फल लगदा। जिवें आपां पिछले सत्संग दे विच विचार कीती सी कि किवें नामदेव जी दी शरदा है भावना है। तरलोचन भी नामदेव जी कोल आउंदा है, वो भी उन्हां दी किरिया नूं वेखदा है। भलके उठे नाम दे चल तरलोचन आवे। नामदेव जी कोल तरलोचन चल के आउंदा है। भगत करे दोए जने नामदेव हर चलत सुनावे। नामदेव जी ऐसियां शरदा दियां वार्तालाप तरलोचन नूं सुणाउंदे हन ते तरलोचन दे उत्ते भी बख्शिश हो जाती है नामदेव जी दे राहीं। उस नूं भी परमेश्वर दे किहो जे दर्शन हो जाते ने कि परमेश्वर अपने भगतां दी कार कमाउण वास्ते आया। भावें तरलोचन दे घरों बीबी ने निंदिया कर दिती, नारायण निंदस भूली रे गवारी, वो भुल गई। ऐसा कर्म आ गया कि वो जो घर विच आया सी परमेश्वर सारे काम करदा सी, उहदी निंदिया करन दे नाल वो चला गया, पता लग गया। सो आपां बहुत खोल के विचार कीती सी कि किन्नी शरदा है ना। जदों पिता बाहर गया क्योंकि वो पिता माता दी रीस विच अपने नाना जी नूं कहंदा सी, नानके घर रहिंदा सी। ते वो पिता जदों ये गया बाहर उस दिन नामदेव जी नूं कह गया कि तू इस तरह दे नाल भोग लवाई। शरदा सी, बचपन सी, अनभोल सी, क्योंकि भोले पाए मिले रघुराया। इस तरह दे नाल ओ हुण दसी रीत मुताबक कि किवें भोग लवाउणा है। हुण चला जांदा है जो अपना ठाकर है बीठल है उस नूं भोग लवाउंदा है, उस दे अगे दुध रख देंदा है। सोयन कटोरी लै अमृत भरी लै नामे हर आगे धरी। हुण उस दे विच दुध पा के जदों बीठल दे अगे रख देंदा है, बेनतियां करदा है कि तुसी इस नूं भोग लावो। ते हुण जिवें अगे भोग लगदा सी अगे तां क्योंकि भावना तो हीणे इंसान एक इस तरह दे नाल रीति चला लेंदे ने कि चलो प्रवान हो गया, हुण उस नूं कोई लोड़ नहीं, वो आप छक लेंदे हन। पर नामदेव जी तां अनभोल सी, गुरु दे प्यार विच परमेश्वर दे प्यार विच रत्या होया सी। ते इस तरह शरदा दे विच आके
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੋ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇਆ, ਨਾਮ ਦੇਵ ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ। ਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇਆ, ਨਾਮ ਦੇਵ ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ। ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੋ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਦੇਵ ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਦੇਵ ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ। ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਦੇਵ ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇਵ ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇਵ ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ। ਨਾਮ ਦੇਵ ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇਵ ਕਰੇ ਬੇਨਤੀ। प्यारे जी नाम देव करे बेनती। मेरे प्यारे नाम देव करे बेनती। नाम देव करे बेनती। नाम देव करे मिलो मेरे गोविंद जी नाम देव करे बेनती। गोविंद राया नाम देव करे बेनती। मेरे गोविंद राया नाम देव करे दूध पियो मेरे गोविंद राय, नहीं तो घर को बाप रसाए। किड्डी प्यार दी शरदा दी भावना दी बेनती है। हुण सामने बैठा है बेनतियां कर रहा है कि दुध पियो। हुण दुध पीण वास्ते किहो जिहा रूप बनाउंदा है। नामे देख नारायण हसै, एक भगत मेरे हिरदे वसै। अज वो नारायण देख के हस रहा है कि अगे तो सामने इसका
ਪਿਤਾ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਖਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਸਾ ਭਗਤ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਭੋਲਾ ਭਾਵ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੀਝਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਏ। ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪ ਬੀਤੀ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਦਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਕੁਝ ਆਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ। 22 ਘੰਟੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ। ਯੋਗਿਕ ਨੀਂਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੀਬੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਗ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛਕੋ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਆ। ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੜ ਜਾਣਾ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਛਕੋ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੀਬਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ, 8 ਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਆ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵੈ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜਿਉ ਪਰਿਆ, ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਨਕਸਰ ਕਿ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ, ਪਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹਨ,
क्योंकि जे डालडे दे प्रसाद बना के लियांदे विच चरबी पई होई है, वो ठीक भी नहीं भोग लाउण वास्ते चलो कह दिता प्रवान होए, उन्हां दी अपनी भावना है। पर बाबा नंद सिंह जी अपने शरीर काल दे विच सारी ता जिंदगी परतख भोग लवाउंदे रहे। फिर कोई नास्तिक, कोई तर्क करन वाला, कोई क्रिटिसाइज करन वाला कहता है कि महाराज जी गुरु नानक भोग लाउंदे हन, महापुरुष कलेरां वाले कहण लगे कि लाउंदे हन। फिर उन्हें बड़ी उल्टी जी गल कर दी कि फिर वो किधर जाते ने जंगल पानी। महापुरुष भी बड़े स्पष्ट शब्दां दे विच जलाल विच आके कहण लगे कि जिहड़े तेरे वर्गे निंदक हन उन्हां दी जवान दे उत्ते बड़ी गल सख्त गल सी। हुण इन्ना जलाल सी कि की मजाल है महापुरुष दे अगे कोई इस तरह का सवाल आवे। सो साध संगत लोड़ है भावना दी, शरदा दी। ये शरदा दे नाल ही बेड़ा पार होना है। महापुरुषां दे जिथे निवास स्थान मोहाली गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी उत्थे प्रकाश कीते हुए सन। पट्ठे वाला जो कि बड़ा प्यारा जीवन है, वो जदों कोठी बनी इत्थे पट्ठे दे उत्ते वो मुंशी सी, उस दा ब्याह होण लग्या, रातों रात दौड़ गया, दूजे भरा नूं बरात लैके गए, ब्याह के लियाए। महापुरुषां दा किन्ना उस दे अंदर भावना सी। उन्हां दिनां दे विच 1980-81 दे विच जदों महापुरुषां ने इस इलाके दे विच जाना, उन्हें लालटन लैके बैठ जाना, गेट बनाउणा, दुध लैके बैठ जाना। कईयां ने कहना कि इधर नूं किवें महापुरुष आउणगे, वो तां रास्ता होर है। कहना मेरी भावना नूं जरूर फड़ लाउणगे। महापुरुषां दा असूल रहा है कि उन्होंने अपने नाल अपना खाण पीण दा समान लैके जाना। पर शरदा दी गल है, भावना दी, कि वो पट्ठे वाले कोल महापुरुष रात दे जदों 1-1:30 बज जाना, वापसी ते आउणा, उथे जरूर दुध छकना। सारे सिंघां नूं कहना कि इन्ने पाठ करो, दुध छको। सो ये भावना है। जदों कोठी गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश सी, फिर पट्ठे वाला महापुरुषां दे कोल ही चला गया। फिर उसने पिछे मुड़ के नहीं वेख्या। हुण जदों उन्हें भोग लवाउण जाना, काफ़ी समा मुड़ के ही ना आउणा। महापुरुषां ने पूछना कि तू इन्नी देर ला के आया? कहण लग्या महाराज जी मैं छका के आया हाँ, क्योंकि टाइम तो लगता ही है छकण। भावना है। सो ये भावना दा फल है। किन्नी संगत आउणी महापुरुषां कोल, सवेर तो रात तक, अद्धी रात तक संगत ने आउणा। जे हुण भोग लग गया, फिर भंडारे दे विच कोई घाट भी नहीं आउंदी। जिथे सतपुरुषां दे लंगर चलाए होए हन, सतगुरां नूं भोग लगदे हन, उन्हां लंगरां दे विच कदे तोट नहीं आउंदी, कदे वो लंगर बंद नहीं हुंदे, निरंतर 24 घंटे चलदे हन। उथे कोठी हज़ारां ही संगतां ने लंगर छकना, कदे भी तोट नहीं आउणी, कदे उस दे मूँह तो गल ना आउणी कि अजे तैयार करना है जां बणिया नहीं। जिन्नी मर्जी संगत आ जावे, पंगतां ला के सारिआं नूं भोजन पानी छकाउणा। क्योंकि गुरु घर दी परंपरा है कि लंगर चलाउणे मंदिर बाद दे विच ने। पहला लंगर पाछे मंदिर, पहला पंगत पाछे संगत। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने हजूर साहब जदों ये भाई संतोख सिंह जथेदार जी नूं ये आदेश दिता कि इत्थे मंदिर नहीं बनाउणे, लंगर चलाउणे हन, उही सेवा के जो कि बाबा निधान सिंह जी चलाउंदे रहे। कमेटियां हिसाब किताब करन वालियां हुंदियां हन। जिथे हिसाब किताब होण उथे घाटा पैंदा ही पैंदा है। हुण इत्थे तां खावो खर्चो रल मिल पाई, तोट ना वध दो जाई। हुण बाबा जी लंगर चलाउंदे ने, कमेटी वाले इस गल नूं नहीं चाहुंदे। उत्थों चल के जदों हजूर साहब नदेड़ तो मनवाड़ स्टेशन दे उत्ते पहुंचदे ने, अजे गड्डी आउण विच देर है, पंजाब वल नूं चाले पाउंदे हन,
तां की होया, जदों अखां बंद कीतियां सुरत जुड़ी, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे साकार दर्शन होए। वर दिता कि प्रेमिया तू ना जा, इत्थे लंगर चला ते ये लंगर वास्ते जिहड़ा खीसा मेरा हथ तेरा होवेगा, कदे टोट नहीं आवेगी। तू इस दे विच शरदा दे विच आ। ते वो पिछे मुड़ गया। बाबा जी, बाबा निधान सिंह जी महाराज, उन्होंने फिर उत्थे जिथे हजूर साहब है सतगुरु जी का पवित्र पावन स्थान, उस दे सामने ही दरख्तां थले एक पीपा कट के पानी उबलना रख दिता, बालन इकट्ठा करके। पीपे दे जिहड़ा कट्टिया ढक्कन सी आटा लिया के उहदे उत्ते प्रसादा बनाउणा शुरू कर दिता ते उत्थे ही पंगत लगनी शुरू हो गई। किन्नी बरकत पई। अज जो संगतां उत्थे पवित्र पावन स्थान ते नतमस्तक होण जांदियां हन, उन्हां नूं पता है कि उत्थे वो किन्नी उस लंगर दी बरकत है। हज़ारां ही कमरे बन चुके ने, हज़ारां दी तादाद दे विच लंगर संगत छकदी है, पंगत लगदी है, टोट नहीं आउंदी। सो इस वास्ते शरदा दी लोड़ है, भावना दी लोड़ होया करदी है। जिथे शरदा है, शरदा दे नाल ही बेड़े पार हो जाते ने। ज्ञानी दिमाग तो गल करदा है, दिल तो नहीं करदा। इसे करके सच्चे पातशाह जी ने कहा है कि ये प्यार दी खेड है जिहड़ी इहदे विच तू सिर दे दे। हुण आपां तां इस दे शब्द दे अखरी अर्थ करांगे कि जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, के तली दे उत्ते सीस कट के रख लो। पर महापुरुषां दे जिन्हां ने अनुभव सुने हन, वो की दसदे ने, कहंदे कि सीस दे विच ही दिमाग है, इस दे नाल ही सारा सिस्टम चलदा है, इस दे विचों ही फुरने उठदे ने, इस दे विचों ही सब कुछ हुंदा है। ते जे यही समर्पित कर दिओ मन विच सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास, सेवा करत हुए नहकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। सो ओ सेवा दे विच, शरदा दे विच सब कुछ मिल जाता है। इस तरह दे नाल सतगुरु जी रहमत करते हैं कि तू ये सीस सानू दे दे। अमृत छकाउण समय पंज प्यारे मंग करते हैं कि अज तो ये जिहड़ा सीस है गुरु नूं समर्पित हो गया, समर्पण हो गया। ये सीस गुरु नूं ही जदों दे दिता, फिर साडी की मजाल है कि असीं इस दे विचों कोई गलत सोच सोचीए। पर साध संगत भगतां दी गल है। भगत दिल तो प्यार करते ने, कोई तर्क वितर्क नहीं करते, कोई घाटवाद नहीं देखते, कोई गिला शिकवा नहीं करते, कोई शिकायत नहीं, समर्पित है। तो पर यह खेड कितनी औखी है। सच्चे पातशाह कहते हैं कि खेड खेडनी कोई सौखी नहीं। इस दे विच पास होना भी कोई सौखा काम नहीं। ये तो प्यार वालियां दी, शरदा वालियां दी ये खेड होया करदी है। ओ सीस तली ते तरना पैंदा, औखी खेड प्रेम दे ना पैंदा जी, औखी खेड प्रेम दे तरना पैंदा, औखी खेड तरना पैंदा, औखी खेड प्रेम दी। इस तली ते तरना पैंदा, औखी खेड प्रेम दी। तरना पैंदा, औखी खेड प्रेम दी। तरना पैंदा, औखी खेड प्रेम दी।
खेड़ प्रेम दी, खेड़ प्रेम दी, औखी खेड़ प्रेम दी, खेड़ प्रेम दी, दलित तना पैंदा प्रेम दी, ना पैंदा औखी खेड़ प्रेम दी, चौथो प्रेम खिलन का जाओ सिर तार तली कली, इत मार्ग पैर तरी ओ गगन दमामा वाचे ओ पर नशन, ओ खेत मांडे सूरमा, सूरा तो पहचानी है जो करे दीन के, ओ पुरजा पुरजा काट मरे कवे न सके तो, पहला मरण कबूल जीवन की षड आस, हो सवन की रेणुका तो आओ हमारे पास। ये तो है ही प्यार वालियां दा, शरदा वालियां दा मार्ग। इस रास्ते दे उत्ते दूसरा तो चल ही नहीं सकता। ज्ञानी तो आप तो रुकिया ही है क्योंकि उन्हें तर्क है, उस दे विच हर गल दे विच तर्क है। हुण शरदा वाला तो गल नूं मन लैंदा है, सुन साखी मन जप प्यार। नामदेव जी की साखी सुन के शरदा उत्पन्न होंदी है कि जिमें नामदेव जी ने प्रतख साकार गोबिंद राय प्रगट कर ले ते किन्ने उन्हां दे उत्ते खुशी हो गई। प्यार वाला अपने इष्ट दे अगे नमस्कारां करदा है, इष्ट नूं ध्यानदा है। साडा जो इष्ट है धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी, ये तो जिहो जी भावना रखो फल लगेगा। हुण इत्थे अरदासां हुंदियां हन, वो अरदासां जदों सत्संग तो बाद टिकिया होया मन होवे, जिस दे हिरदे चों अरदास निकलदी है उसकी मुराद पूरी हुंदी है। पर साडी अवस्था की है दात प्यारी, विसरिया दतारा असीं भुल जांदे हां। पातशाह साडे तो कुछ नहीं मंगदे, एक मंग मंगदे ने। की मंगते ने? जिमें नामदेव जी ने प्यार किया, शरदा दे विच आके भोग लवा दिता, इसे तरह दे नाल साडे तो भी एक मंग मंगते ने। परमेश्वर की कहते ने, गुरु की कहते ने? गुरु गोबिंद गोबिंद गुरु है, नानक भेद ना पाई। गुरु परमेश्वर एको जान, इन्हां दे विच कोई फर्क नहीं। ते वो की कादी उन्होंने भुख लगी है, सातों की मंगते ने? आपां हुण हर रोज सतगुरु जी तो मंगते हाँ, पर सतगुरु जी की मंगते ने? कहते मैनू भी कोई भुख लगी है, ते ओ मैनू कोई विरला ही ऐसी वस्तु देंदा है। किहड़ी भुख है? पाओ भगत दा भुखा गोविंद, पाओ भगत दा भुखा गोविंद, पाओ भगत दा भुखा।
पाओ भगत दा भुखा गोविंद भगत दा भुखा ओ भगत दा भुखा गोविंद पाओ भगत दा भुखा पाओ भगत दा भुखा गोविंद गोविंद पाओ भगत दा भुखा किन्ना प्यार भगतां दा भगत ने वस परमेश्वर नूं प्यार दे नाल ही कीता समर्पित कर दिता शरदा दे विच आके सब कुछ गुरु नूं समर्पित कर दिता पर ज्ञानी की करदा है ज्ञानी सानू होड़दा है बेमी ढोला आखदा है मारे गए जिन्हां बुद्धि पार लाइयां जा रहियां बैठ वे ज्ञानी बुद्धि मंडले दी कैद विच बलवले दे देश साडियां लग गईयां जा रहियां ओ बलवले दा देश जिथे दिली बलवले हन प्यार है ਉਹ ਕਿਸੇ शब्द ਦੇ ਵਿੱਚ कोई बयान नहीं किया जा सकता प्यार ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵਸ कर लिया प्यार ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ लिया सो ऐसियां विचारां तो साडे अंदर भी शरधा उत्पन्न हो जावे साडे अंदर भी जीवन दी रौं रुमक जावे फिर साडे भी सारे कार्य परमेश्वर आप करेगा जो जन तुमरी भगत करन ते तिन के काज सवारता सो हुण समा इजाजत नहीं देंदा इथों विचार अगले सत्संग विच शुरू होवेगी सो प्यार वालियां संगतां गुरु दरबार दे विच पहुंचदियां हन गुरु प्यार दे विच अपने प्यारे दे उस प्यारे आदेश नूं मनदे होए इत्थे आके सत्संग विच हाजरी भरदे हो सो प्यार वालियां दी कोई गिणती नहीं हुंदी प्यार वाले तां विरले ही हुंदे हन होर व्यापारी बथेरे ने सो आप जी गुरु प्यार वाले प्यारियां संगतां ऐसे हालात दे विच जदों कि अज तर्क वितर्क हो रही है फिर भी शरधा दे रखनी तुहाडे चरनां दे विच सीस झुकदा है धन्नो तुसीं कि इन्नी शरधा इन्ना प्यार हर ऐतवार पहुँचते हो कोई इत्थे साधन नहीं आउण दे आपो अपने साधना राहीं आपे तुसीं आके सारा कुछ करते हो सो हमरा किया कुछ न होए कर है राम होए है सोए सोए प्यार दा ये लंगर चलते ने प्यार दे सहारे 13 साल हुण पूरे हो चुके ने वो लंगर चलते नो जिहड़ा निरंतर तुहाडे तक ये प्यारे दे संदेश नूं पहुंचा रहा है लंगर चले गुर शब्द टोट ना आवी खट्टिया उहदे विच कोई घाटा नहीं आया बैंकां ने ब्याज का एक पैसा नहीं दिता महापुरुष का प्रबंध कर गए सन पर उन्हां दे रोकियां तो भी नहीं रुकिया क्योंकि तुहाडे वर्गे प्यारे सेवादार प्यार वालियां संगतां ये प्यार का सबूत दे रही ने महापुरुषां दी चलाई परंपरा नूं अगे तोड़ रही हन सो धनता जोग तुहाडे चरनां दे विच सीस झुकदे ने सो सारियां दा ही धन्नवाद आओ हुण आनंद साहब गुरु स्तोत्र पढ़ियो प्रांत अरदास विच जुड़िए राम कली महला तीजा आनंद
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ Thank you.